નમસ્તે દર્શક મિત્રો, ફિટનેસ ફંડામાં આપ સર્વેનું સ્વાગત છે. આજે આપણે પીસીઓડી માટે પ્રાણાયામ અભ્યાસ કેટલા કલ્યાણકારી છે એને વિશેષથી પ્રેક્ટિકલ અભ્યાસ કરી અને જોઈશું. અને એ પછી પીસીઓડી એ લાઈફ ટાઈમ ડિઝીઝ છે, તો આપણું જીવન એમાં પંચમહાભૂત ખૂબ મહત્વના છે. આપણું શરીર પણ પંચમહાભૂતમાંથી બન્યું છે અને એને રોગમાંથી મુક્ત પણ આ પંચમહાભૂત જ કરે છે. તો એ વિશે પણ આગળ જાણીશું. તો સર્વપ્રથમ આપણે પ્રાણાયામ જોઈશું. પ્રાણાયામમાં સર્વપ્રથમ ભસ્ત્રિકા પ્રાણાયામનો અભ્યાસ કરીશું. પ્રાણાયામ અભ્યાસ તમારી મનઃસ્થિતિને બદલી અને તમને તણાવમાંથી મુક્ત કરે છે. તો પીસીઓડી માટે તણાવમાંથી મુખ્ય એક કારણ તણાવ પણ છે. તો એમાંથી મુક્ત થઈ અને રોગમાંથી નિરાપદ પરિણામ પ્રાપ્ત કરીશું. ભસ્ત્રિકા પ્રાણાયામ કોણ ન કરી શકે? જેને હાઈ બ્લડ પ્રેશર હોય એ લોકો ભસ્ત્રિકા પ્રાણાયામ ન કરી શકે, અથવા બંને શ્વાસના જે સ્ટ્રોક છે એની વચ્ચે 2 કે 5 સેકન્ડનું અંતર રાખી ફોર્સ સેમ જ રહેશે, પણ જે ડિસ્ટન્સ છે બે શ્વાસ વચ્ચેનું એમાં ડિસ્ટન્સ રાખી અને આરામથી જો અભ્યાસ કરે તો એ ભસ્ત્રિકા પ્રાણાયામ કરી શકે છે. અને મુખ્ય રૂપથી સવારે અને સાંજે ગરમીના સમયે ભસ્ત્રિકા પ્રાણાયામનો અભ્યાસ કરવાનો નથી, કારણ કે ભસ્ત્રિકા પ્રાણાયામ એ શરીરની અંદર અગ્નિ ઉત્પન્ન કરે છે. અને અગ્નિમાં જે આહુતિ નાખીએ છીએ તો તમે જે ગંદકી શરીરની અંદર આહાર સ્વરૂપે નાખી છે એને ભસ્મીભૂત કરી દેવાનું કાર્ય આપણી આ ભસ્ત્રિકા પ્રાણાયામ કરે છે. અને ભસ્ત્રિકા પ્રાણાયામથી ફોર્સફુલી આપણા સેલની અંદર જો ઓક્સિજનની માત્રા જાય છે એને સુચારુ રૂપથી કાર્યાન્વિત કરે છે અને આપણને સ્વાસ્થ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. ભસ્ત્રિકા પ્રાણાયામ એક એવું પ્રાણાયામ છે કે તમારા તણાવને કારણે કંઈ પણ પરિસ્થિતિ જીવનમાં ઘટિત થઈ હોય, એ તમને પરેશાન કરે છે, તો એને ઇન્સ્ટન્ટ ડિલીટ કરવી હોય તો બી ભસ્ત્રિકા પ્રાણાયામ છે. અને ઇન્સ્ટન્ટ એનર્જી પ્રાપ્ત કરવી હોય તો પણ ભસ્ત્રિકા પ્રાણાયામ છે. તમને એક્ટિવેટ કરવા હોય, મૂડ પણ તમારો લેઝી કે કંઈક કાર્ય કરવા માટે તમે તૈયાર નથી, તો તમને એ કાર્ય કરવા માટે જો તૈયાર કરતું હોય તો એ પણ એ ભસ્ત્રિકા પ્રાણાયામ છે. ચલિએ, આપ સૌ પ્રથમ પદ્માસન અને વજ્રાસનમાં બેસીને કરી શકો તો ખૂબ સારું છે. ન કરી શકો તો શરૂઆતમાં તમે સુખાસનમાં પણ બેસીને કરી શકો છો. ચલો, આજે ભસ્ત્રિકા પ્રાણાયામ વજ્રાસનમાં એટલે કરવાનું કે આપકી સ્પાઇનનો જે ભાગ છે સીધો રહે છે એમાં. અને શરૂઆતમાં જ્યારે ભસ્ત્રિકા પ્રાણાયામ શીખી રહ્યા છો ત્યારે ક્રિયાના રૂપમાં કરવાનું છે. બંને મુઠ્ઠી કંધોની સામે ફોર્સથી શ્વાસ ભરીશું તો ઉપરની તરફ હાથ લઈ અને મુઠ્ઠી ખોલીશું અને ફોર્સથી શ્વાસ નીચે લાવીશું મુઠ્ઠી બંધ કરીને. શ્વાસ ભરતા રિલેક્સ. હથેળી આકાશ તરફ ખુલ્લી રાખીશું. લંબી ગહેરી શ્વાસ ભરીશું અને છોડીશું. આવો અભ્યાસ 10-10ના શરૂઆતમાં 3 થી 4 રાઉન્ડ લગાવીશું, પછી 15-15ના, પછી 20-20ના, એમ કરી અને આપણે અભ્યાસ શરૂઆત કરીશું. ભસ્ત્રિકા પ્રાણાયામથી તમે ઇન્સ્ટન્ટ વાઇબ્રન્ટ મોડમાં આવી જાઓ છો અને તમે એક્ટિવેટ થઈ જાઓ છો. તમારી અંદર રહેલી અશુદ્ધિઓને ભસ્મીભૂત કરી દે છે આ ભસ્ત્રિકા પ્રાણાયામ. ભસ્ત્રિકા પ્રાણાયામ પછી આગળનો અભ્યાસ છે कपालभाति. कपालभाति माने उसके शब्द में ही उसके गुण हैं. उसमें भी हम वज्रासन में बैठेंगे, लेकिन जो प्रेग्नेंट वुमन है उसको नहीं करना है. फिर जिनको बहुत पेट की बहुत सारी समस्याएं हैं अंदर, उसको डॉक्टर की सलाह सूचन या अच्छे योग टीचर जानकार हो उनकी निगरानी में रह के ही अभ्यास करना है. बाकी कपालभाति भी कर सकते हैं. ये एक प्राणायाम भी है और शुद्धि क्रिया. जैसे झाड़ू पोछा रोज लगाते हैं हम घर में शुद्ध करते हैं, वैसे ही हमारे शरीर को
शुद्ध करने के लिए ये कपालभाति प्राणायाम भी है और शुद्धि क्रिया भी है। तो मुख्य रूप से आप पीसीओडी के पेशेंट हो तो आपको वायु मुद्रा ऐसे अच्छे से लगा देना है। फर्स्ट फिंगर को अंगूठे के नीचे दबा के ऐसे बैठना है और 1 सेकेंड में एक श्वास को बाहर निकालना है ऐसे। रिलैक्स। इस कपालभाति के अभ्यास को भी 5 मिनट से लेकर लगातार 15 मिनट तक कर सकते हो। हर प्रकार की ट्यूमर को पिघलाने के लिए श्रेष्ठतम अभ्यास है। और पीसीओडी में आपकी ओवरीज में छोटी छोटी सिस्ट बन जाती है, तो उसमें से निजात पाने के लिए ये कल्याणकारी अभ्यास है। और आपके ब्लड को शुद्ध करने के लिए, शरीर में कुछ न्यूट्रिशन की कमी है उसको भी पूर्ण करने हेतु और संपूर्ण स्वास्थ्य हेतु ये कपालभाति बहुत ही लाभदायक प्राणायाम और शुद्धि क्रिया है, विशुद्धियों को शुद्ध करता है। उसके बाद अगला अभ्यास है शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम हर कोई कर सकता है, सिर्फ जिनको ब्लड प्रेशर लो रहता है वो इसका अभ्यास ना करे, बाकी सब इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो उसमें आपको मुंह से टंग को बाहर निकाल के श्वास भरनी है, नाक से। बाहर का एटमॉस्फेयर साफ ना हो, धूल मिट्टी उड़ रही हो, तब इस अभ्यास को नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमारे फिल्टर नासिकाओं में भगवान ने लगाए हैं, मुंह में नहीं लगाए हैं। तो आपको टंग को बाहर निकालना है, अच्छे से सांस को लेना है, नाक से बाहर, फिर से मुंह से भरिए। ये अभ्यास भी आप 5 से 15 बार कर सकते हो, जो आपको तनाव से मुक्त करता है, मन को शांति प्रदान करता है ये अभ्यास। उसके बाद अगला अभ्यास है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम भी बहुत तरीके से 3-4 जैसे आप साधक बनते जाओ ऐसे ऐसे कुंभक को बढ़ा सकते हो, अंत और बाह्य कुंभक ऐसे करके, जो कल्याणकारी परिणाम देते हैं। ये सभी के लिए लाभदायक है। जैसे शरीर को विटामिन की आवश्यकता रोज रहती है, वैसे ही ये, और उसको रोज हम आहार से लेते हैं, वैसे ही ये जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है उसको रोज करना है। निर्बल से निर्बल व्यक्ति भी सबल बन जाता है, इतना ही दिव्य अभ्यास है। लेटे लेटे भी आप इसका अभ्यास कर सकते हो, दिन में 4 बार। अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है हमारी ऊर्जा चैनलों को ऊर्जान्वित करने का कार्य करता है, प्रत्येक सेल तक ऑक्सीजन ले जाता है, और ऑक्सीजन ही जो सूक्ष्म आहार है हमारे शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए, और उसी को हम अभ्यास करते हैं। राइट हैंड से प्रणव मुद्रा करेंगे, राइट नासिका को बंद करेंगे, लेफ्ट से आराम आराम से सांस भरेंगे, उतनी ही मात्रा में पहले होल्ड करेंगे और उतनी ही मात्रा में निकालेंगे। फिर राइट से ही भरेंगे जहाँ से निकाला था, फिर दोनों नासिकाओं को लॉक कर देंगे और लेफ्ट से निकालेंगे। ये प्रथम जो आप नए साधक हो तो ऐसे अभ्यास करना है, रिपीटेशन करना है 10 बार और 5-10 मिनट तक। फिर थोड़े अच्छे साधक बन जाओ तो आपको फिर से लेफ्ट से सांस भरा, दोनों नासिकाओं को लॉक किया, राइट से निकाला, और निकालने के बाद भी बाह्य कुंभक लगा देना है। फिर राइट से ही भरना है, दोनों नासिकाओं को लॉक करना है, लेफ्ट से ही निकाल देना है और लेफ्ट को बंद कर देना है। दूसरा जो प्राणायाम का थोड़ा एडवांस बाह्य और आंतः कुंभक के साथ कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो लेफ्ट से शुरू करते हैं, सांस भरते हैं, दोनों नासिकाओं को लॉक कर देते हैं, राइट से सांस को निकाल देते हैं, निकालने के बाद ही बाह्य कुंभक भी लगा देते हैं, फिर से
राइट से हम सांस भरेंगे, दोनों नासिकाओं को लॉक कर देंगे और लेफ्ट से सांस को निकाल देंगे। ये एक आवर्तन पूर्ण हुआ। तो आंतः और बाह्य कुंभक के साथ हम ऐसे करेंगे। उससे भी आप अच्छे साधक बन जाओ तो अकेला बाह्य कुंभक के साथ भी अभ्यास करते हो, वो बहुत ही कल्याणकारी परिणाम देता है। वो आपको ध्यान की तरफ भी ले जाने वाला अभ्यास है। आइए उसका भी अभ्यास कर लेते हैं। उसमें लेफ्ट से सांस भरी, तुरंत राइट से निकाल दो और दोनों नासिकाओं को लॉक कर दो। बाह्य कुंभक, भीतर सांस है ही नहीं, जितना होल्ड कर सकते हो अपनी क्षमताओं के अनुसार होल्ड करना है। फिर आपको राइट से निकाला तो राइट से भर दो और लेफ्ट से निकाल दो, फिर होल्ड कर लो। विश्राम। तो ऐसे 3 अलग अलग तरीके से अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास जैसी आपकी क्षमता है वैसे वैसे धीरे धीरे बढ़ाना है। अब आपको एक प्रश्न उठेगा कि लेफ्ट से ही क्यों स्टार्ट किया? तो हमारी लेफ्ट साइड की जो नासिका है वो चंद्र नाड़ी है, राइट जो है सूर्य नाड़ी है। तो हम आराम से शांति से ही शुरू करेंगे, इसलिए हम लेफ्ट नासिका से शुरुआत करते हैं। आइए अब हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। जो भ्रामरी प्राणायाम है वो भी सब कोई कर सकता है। भ्रामरी प्राणायाम आपकी न्यूरोलॉजिकल सिस्टम के लिए कल्याणकारी परिणाम देती है। तो भ्रामरी प्राणायाम के लिए आपके कान के ढक्कन को ऐसे बंद कर देना है, फिर ऐसे लॉक लगा देना है। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम उसमें श्वास भरेंगे और श्वास निकालते निकालते पेट को भीतर सिकुड़ते सिकुड़ते मकार का उच्चारण करना है। चलिए आप करते हैं, 2 बार इसका अभ्यास करके देखते हैं। तो श्वास भरिए, विश्राम। ये भ्रामरी प्राणायाम आपको शांति प्रदान करता है, एकाग्रता प्रदान करता है और तनाव से मुक्त करने के लिए भी बहुत अच्छा ये प्राणायाम है। कई बार पीसीओडी में हम रात को इस रोग की वजह से कई बार हम बहुत कुछ चिंतित होते हैं, तो इस चिंता में से भी आप मुक्त हो सकते हैं। ब्रेक होके नींद आती है तो कंटिन्यू नींद लाने के लिए भी भ्रामरी प्राणायाम कल्याणकारी हो सके। रात को भी उसको करके सोना है। उसके बाद उतना ही अच्छा एक और प्राणायाम है जिसको उद्गीत प्राणायाम भी बोलते हैं, ओमकार भी बोलते हैं। इसमें भी आ, ओ और मकार का उच्चारण करना है। आ बोलते समय नाभि के ऊपर, ओ बोलते समय हृदय के ऊपर और मकार के समय गले में ध्यान ले जाना है। चलिए श्वास भरते हैं। विश्राम। तो ऐसे प्राणायाम के अलावा कुछ बंध का अभ्यास भी है और मुद्राओं का अभ्यास है जो आसन प्राणायाम से भी उच्च कोटि का है। उसका भी हम इस पीसीओडी में से निजागत पाने के लिए देख लेते हैं। मूल बंध और अश्विनी मुद्रा दोनों में ज्यादा भेद नहीं है। मूल बंध आपके मलद्वार और मूत्रद्वार को आपको लॉक करके ऊपर की तरफ जितना हो सके श्वास बाहर निकाल के रोक के रखना है। आपके पेल्विक एरिया पे ये प्रेशर डालता है और उसको कार्यक्षम बनाता है। तो उसका अभ्यास हम करते हैं, एक बार देखते हैं प्रैक्टिकल। श्वास भरिए, मलद्वार मूत्रद्वार को लॉक करते हुए जितनी क्षमता है उतना लॉक करके रखिए, फिर छोड़ दीजिए। ऐसे ही अश्विनी मुद्रा है। अश्व माने घोड़े जैसी ताकत आपके भीतर उत्पन्न करता है। तो उसमें भी आपके मलद्वार को आपको सिकुड़ना है, खोलना है, सिकुड़ना है, खोलना है, सिकुड़ना है, खोलना है।
ये भी आपके प्रजनन तंत्र को कार्यान्वित रखता है और स्वस्थ रखने के लिए ये अश्विनी मुद्रा भी लाभदायक है। पीसीओडी को ये पंच महाभूत कैसे क्योर करते हैं? देखिए, पीसीओडी एक प्रजनन आयु की महिलाओं में होने वाला एक रोग है। उसमें जो सबसे कठिनाई है बहनों को प्रेगनेंसी कंसीव करने में आती है। आपकी साइकिल रेगुलर नहीं है और आपका प्रजनन तंत्र स्वस्थ नहीं है तो प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत समस्याएं आती है। तो एक उदाहरण के रूप में मैं बताती हूँ। जैसे हमने एक पौधा लगाया है, उसको सिंचने के लिए ना अच्छा हवा, न पानी, न सूर्य प्रकाश मिले तो वो पौधा हमें फल और फ्रूट नहीं देता है। वैसे ही हमारा जो शरीर है उसमें भी मुख्य रूप से हमारा पेट, और ये पीसीओडी होने का मुख्य कारण हमारा पेट ही है। पेट में हम जो भी कचरा डालते हैं, जो भी खाना खाते हैं वो सात्विक है तो अच्छे परिणाम देता है, उसको रोग उत्पन्न ही नहीं करता। लेकिन हमने डब्बा बंद खाना खाया है और जो फैक्ट्री में जो बन रहा है फूड वो खाया है हमने, तो वो सारा फूड हम टंग को तो टेस्टी लगता है लेकिन वो पेट में जाके, आंतों में जाके फिर वो चिपक जाता है और हमारे शरीर के अंदर जो आते हैं उसमें विलाई है, छोटे छोटे जो हम खाते हैं ना, उसको वो सीधा अवशोषित करते हुए ब्लड में सीधा डाल देते हैं। अब वो आप गंदगी खाएंगे तो गंदगी को अवशोषित करेंगे, आप सात्विक आहार खाएंगे जो शरीर को अनुकूल है, जो लिविंग थिंग से मिलता है, तो फिर वो स्वास्थ्य देगा। तो अब आप जब गंदगी डालते हो अंदर आहार के स्वरूप में, तो वो आहार जो है वो खाया, अशुद्धियां वो विलाई अवशोषित करके सीधा ब्लड में डाल दी। अब ब्लड क्या करेगा, पूरे शरीर में फैलता है और ये अशुद्ध लोही ही रोग का कारण बनता है। ये सिस्ट के रूप में कहीं ना कहीं, या स्किन की समस्या, ऐसे बहुत सारे रोग का कारण हमारा पेट ही है। तो हमें हमारा पेट ही उपजाऊ नहीं, हमारा प्रजनन संस्थान ही उपजाऊ नहीं है तो हम अच्छे बच्चे को या प्रेगनेंसी कंसीव कैसे कर सकते हैं? तो हमें हमारा आहार जो है वो फल, फ्रूट और धान्य के रूप में जो मिल रहा है वो ही खाना है, ना ही प्रिजर्वेटिव वाला फूड खाना है, ना ही बेकरी आइटम खाना है। आजकल दूध और दूध की प्रोडक्ट में भी बहुत सारी मिलावट होती है तो उसको भी नहीं खाना है। हमें कुदरती आहार ही खाना है जो पेड़ पौधों से हमें मिलता है। आइए, ऐसे ही पंच महाभूत हमें कैसे ही क्योर करते हैं। हम पंच महाभूत से ही बने हुए हैं हमारा शरीर, और वो ही हमें कैसे क्योर करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आकाश तत्व। आकाश तत्व में से ही सारे पंच महाभूत पैदा हुए हैं। अग्नि और जल के बीच भी प्रपंच है, पृथ्वी और वायु के बीच भी प्रपंच है, वो चारों में प्रपंच है। लेकिन आकाश तत्व में कोई प्रपंच नहीं है, वो सबसे बड़ा भी है और आपको तनाव से मुक्त करने के लिए भी बहुत ही अच्छा महाभूत है। आइए देखते हैं कैसे। तो लंघनम परम औषधम। देखिए, हम उपवास करते हैं तो क्या होता है, पेट खाली होता है, हमारे पाचन संस्थान को आराम देते हैं। इसलिए उपवास हमारे हिंदू संप्रदाय में, उस परंपराओं में और हर संप्रदाय में रखा है उपवास का महत्व। तो जहां जहां खालीपन होता है वहां वहां आकाश तत्व मौजूद होता है और आकाश तत्व आपको हल्कापन प्रदान करता है। आप देखना, जब उपवास करते हो तो आपका पेट एकदम खाली होगा तो उस दिन आप अच्छा फील करोगे। नहीं, उपवास करके आप फल खा के भी उपवास करके देखिए हफ्ते में एक बार। हाँ, तो जहां जहां खालीपन है वहां वहां तनाव से आप मुक्त होने के लिए आकाश तत्व है। तो आकाश तत्व के नीचे कई बार बहुत तनाव होता है तो आप देखना, खुली आंखें रख के आकाश के सामने थोड़ी देर बैठ के देखना, तुरंत आप शांत हो जाओगे। ऐसे ही जल तत्व भी है। जल तत्व से आप नहाओगे तो तुरंत आप अच्छा रिलैक्स फील करते हो। तो
आपको पीसीओडी में से मुक्त होने के लिए नेचुरल जो जूसेस है उसको पीना है, ना कि फैक्ट्री में से आया हुआ डब्बाबंद जूस पीना है। तो सुबह उठ के ही आपको पहले तो गर्म पानी पीना है, फिर दिन में भी आपको पानी याद करके करके पीते रहना है। तो ये जल तत्व हमारे शरीर 70% तो जल से ही बना हुआ है, तो जल तत्व भी आपके स्वास्थ्य को सुगम बनाता है। नींबू पानी पी लिया, फिर त्रिफला का शरबत पी लिया, ऐसे बहुत सारे आप लिक्विड के फॉर्म में शरीर में आहार देते हो तो वो आपको सुगम स्वास्थ्य देते ही देते हैं। आगे हम देखते हैं हवा। हवा जो हम पूरे दिन में 40 मिनट से लेकर 1 आवर्स तक योगाभ्यास करते हैं, बहुत अच्छे से, जैसे घर में से हवा आर पार निकल जाती है तो घर का एटमॉस्फेयर कितना अच्छा हो जाता है, वैसे ही प्राणायाम अभ्यास से हमारे शरीर में से हम अच्छे से ऑक्सीजन हर एक सेल तक पहुंचाते हैं तो वो सारी ऊर्जा की चैनलें ऊर्जान्वित हो जाती है। ऐसे ही है सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश जैसे ही सनराइज होता है उसके 2 घंटे के अंदर अंदर आपको सनबाथ लेना है। 10 मिनट आप ऊपर के शरीर के हिस्से में दे दीजिए, 10 मिनट उल्टे लेट के आप ले सकते हो। और कई बार सन वॉकिंग भी कर सकते हो, जहाँ सनलाइट आती है वहां आप चल के भी अभ्यास कर सकते हो। उसके बाद है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व जो सॉलिड है उसके ऊपर ही सारा कुछ हम ग्रो करते हैं, तो पृथ्वी तत्व के ऊपर जो ग्रो हुई सारी चीजें जो नेचर ने हमें दी है उसको ही हमें आहार के रूप में लेना है। ऐसे ही पौधों को प्रकाश जो है पकाता है, पानी उसको सिंचन करता है, पृथ्वी उसको विटामिन्स और मिनरल्स देती है, हवा उसको फैलाती है, बढ़ाती है, और आकाश उसको खुलापन देता है। तो वो नेचुरल और लिविंग थिंग्स जो है वो ही हमें आहार के रूप में लेना है और सुगम स्वास्थ्य प्राप्त करना है। तो दर्शक मित्रों, अब पीसीओडी के रोग में से मुक्त होने के लिए मैंने आज जो अभ्यास बताया उसको नियमित रूप से करना है। ये पंच महाभूत, ये पीसीओडी जो है ना लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, तो आपकी लाइफ स्टाइल को इस पंच महाभूत के रंग में रंग के देखिए, फिर आप सुगम स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।